Yes, yeah. So we are continuing with the last part of that lesson on morphology of flowering plants. So right from the beginning, we have seen the what are flowering plants, and a typical flowering plant or an angiosperm has got various parts like the root, the stem, the leaves, inflorescence, flower, fruit, as well as seed. And in सब के हमने basic structure, the locations, the functions, and their different modifications and types we have seen. All the morphological features we have studied, right? And बहुत सारे terminologies वगैरह थे with examples we have learned. I hope you are aware about all the terms. बहुत सारे है ना, तो practice करते रहना है, learn करते रहना है. And in the previous lecture, after completing discussion on the types of the fruit and the seed, फिर हमने floral formula के बारे में discuss किया, where we have seen the symbols, है ना, तो कैसे हम लोग flower को describe कर सकते हैं, all that. So now the last part of this lesson is actually about to study certain angiosperm families. Okay, now family का concept क्या हुआ यहाँ पर? If you go back to that lesson on systematics of living organisms, तो वहां पे हमने देखा है कि there is something called hierarchy of classification, you know that. तो ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, this is under kingdom plantae. Okay, now under kingdom plantae, we are learning about higher plants, that is about phanerogams. Under phanerogams, we are learning about angiosperms. And within angiosperms, there are various groups. So basically, we have two classes, that is dicotyledons and monocotyledons, correct? उसके आगे का जो classification है, there is a huge classification actually. Of course, you don't have to learn the entire classification of angiosperms because वो बहुत massive classification है, and the only point which you have to remember is that कि हम लोग जो classification system follow करते हैं, that is called the Bentham and Hooker's natural system of classification. Okay. So that way, under every class, there are different subclass, order, उसके अंदर बहुत सारे families. Each family has got many genera and many species of plants under it. Okay, so like that, just for the introductory level, because you are learning all this, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 4 families दिखना है. As such, under angiosperms there are huge number of families. Okay, वो पूरा का पूरा, if you go up to PhD level also in botany, तो सब कुछ नहीं होते हैं. It is like a very very huge thing. So because at the beginning level you are learning that, so let us see some very important key families which are उसके features जो है वो थोड़ा prominently seen है. Okay, उसके plants which are commonly found, तो वो सारे चीजें भी हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है? So like that we will begin with the study of some angiosperm families, ठीक है? So you understood the broad idea about the concept of family over here, angiosperm का, okay? Like that, like shortlist करते 4 families and we will go for that. Now always remember कि like whenever the family name is given, उसका नाम हमेशा end होता है CEAE. Okay, तो जैसे रोजेसी, मालवेसी, रूबिएसी, कैरियोफाइलेसी, कैक्टेसी, ऐसे ही नाम आते हैं, ठीक है? तो फैमिली का नाम हमेशा इस तरह से एंड होता है. दैट इज समथिंग वी हैव टू फॉलो. बट बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देयर आर सम फैमिलीज जिसके नाम वैसे एंड नहीं होते. ओके, तो वो टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक रिवाइजिंग द नेम्स व्हेनेवर इट कम्स. So you have to remember some alternate names also for some families. So let us start with the first one, that is the family Malvaceae. Okay, always whenever we learn about plants from family point of view, ये सबसे पहला family जो हम हमेशा पढ़ते हैं, because it is such a unique plant. You know this plant, कौन सा है ये? Hibiscus. Hibiscus rosa sinensis, commonly called the China rose, है ना? तो very commonly grown garden plant. इसके flower भी एकदम very prominent. You can see all the features in this flower. So this belongs to a family called Malvaceae. ठीक है? So under Malvaceae, now whenever we learn about a family, as such there are too many features to learn. Okay, तो बहुत in-depth study होता है. But because you have learned about
lots of features of morphology with respect to root, stem, leaves and everything. तो उन सब का application के नाम पे हम लोग यहाँ पर एक combination पढ़ेंगे family का. So when you learn about family Malvaceae, this is the most common plant that is studied. Okay, तो हम लोग एक particular genus या species को study करते हैं, या there are some characters which are common to the entire family that we study. So the first thing when you talk about this flower or this family, the habit is a shrub. The Hibiscus rosa sinensis, it's a shrub. You know that. The plant हमने देखा and we have seen कि what is the difference between a herb, shrub, tree and a climber. So a commonly grown garden plant which grows as a shrub, the stem is woody. Okay, and when you talk about the leaves, अब यहाँ पे देखना इनके leaves देखो. Now if you use these words to describe simple leaf, you know the meaning. From one point there is only one complete leaf that arises. Okay, alternate किसको बोला गया? What, which feature of the leaf is described as alternate? ऐसे ऐसे होगा, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो मतलब क्रॉस में करते हैं ना वैसा. So from one node there is only one leaf that arises in one direction. So we call it what? Alternate dash. क्या आएगा वो? The pattern of arrangement of the leaves on a plant is known as something with the letter P. P for parrot. साइकोलॉजी. No. अरे बाप, कहाँ चलेगी? And यहाँ पे word का ending logy करके नहीं होगा ना, because logy means a study. And phycology is the study of algae. We are talking about angiosperms. So alternate phyllotaxy. Pattern of arrangement of the leaves on a stem is called phyllotaxy. Okay? Stipulate. That means the leaves have a stipule at the base. ये हमने डिस्कस किया था कि stipule is not a constant feature. सब में रहेगा ऐसा नहीं है. So if the stipule is present, we call it stipulate. If the stipule is absent, we call it exstipulate. So यहाँ पे in this plant, the stipules are present. Okay. Then the word given is obovate. Obovate का मतलब है, we are talking about which leaf character? Obovate is the dash of the leaf. It is the shape of the leaf. लीफ लैमिना का जो शेप होता है, हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे याद है? ऑब्ट्यूज. हाँ, ऑब्ट्यूज वगैरह नहीं, ऑब्ट्यूज आएगा वो लीफ का एपेक्स. लीफ का शेप लैंसियोलेट, लीनियर, एसिक्यूलर, याद है? ओके, ओवेट, ऑबोवेट, कॉर्डेट, ऑबकॉर्डेट, बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे. सो हियर इट इज ऑबोवेट, उल्टा एग शेप. Okay, and venation, because it's a Hibiscus rosa sinensis जो है Malvaceae family, it comes under dicotyledons. So when it is dicotyledons, it has to be reticulate venation. And as you can see in the leaf, it is unicostate, मतलब one main midrib branching out into veins and veinlets. Okay, margin, leaf का margin देखना, ये भी हमने अलग अलग types देखे थे. Serrate, crenate, dentate, spiny, राइट, स्मूथ, अंड्यूलेट, बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, राइट. यहाँ पे क्या है? सीरेट मार्किंग. एंड इफ यू सी द स्टिप्यूल, जैसे स्टिप्यूलेट हमने बोला, सो देयर इज वन टाइप ऑफ अ स्टिप्यूल कॉल्ड फ्री लैटरल स्टिप्यूल. फ्री लैटरल का मतलब क्या है? इट इज वेरी सिंपल कि अगर ये लीफ का पीटियोल है, ओके, सो एट द बेस देयर आर जस्ट टू फ्री स्टिप्यूल्स, लाइक okay, free lateral, two of them in opposite directions, so that's called as free lateral stipules. Okay, that you can see in the leaves of hibiscus. Okay, after the leaves we will go to inflorescence. तो हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, रेसिमोस, साइमोस एंड कंपाउंड.
racemose is indefinite, cymose is definite, compound is a special type. तो यहाँ पर कैसा है, as you can see the peduncle on which the flowers arise, एक peduncle पे एक ही flower आते हैं. That means there is no grouping of the flowers. बड़ा फ्लावर है तो एक काफी है बिकॉज दूर से नजर आ जाएगा, तो देयर इज नो नीड ऑफ अ क्लस्टर. एंड wherever the flower arises, the branch is ending at that point. That means it is a definite. तो एक kind of cymose inflorescence है, इसीलिए solitary cyme arising on the axil. Okay, coming to the flower now, pedicellate. फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिसेल, है ना. तो पेडिसेल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट. ओके, इट हैज गॉट इवन ब्रैंक्स, तो ब्रैक्टिएट. एक्टिनोमॉर्फिक, उसका सिमेट्री याद है, विथ सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, बायलैटरल. नहीं तो नहीं वो रेडियल. हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री. फ्लावर देखते ही समझ में आ रहा है ना. You can cut it into two halves in any plane. Okay, bisexual, male and female androecium gynoecium both are present, and hypogynous, superior ovary, you know that. All the other floral whorls arising from below the ovary. That's how you describe the flower. Okay, similarly if you go to the floral whorls, so if you see the, अभी यहाँ hibiscus में normally floral whorls begin from calyx. But in the case of hibiscus, besides the calyx, ये LS देखना flower का, you can see a calyx over here, but below that there is one more small whorl, which is very similar to calyx but small in size. तो उसको एक अलग से नाम दिया है called epicalyx. This is not commonly seen in every flower. Okay, तो इसको बोलेंगे epicalyx, and individual members are called episepals. So it is like a involucre of bracts. ब्रैक्टिएट हमने बोला है ना, तो ब्रैक्ट्स की तरह ग्रीन कलर का. इन्वोल्यूकर मतलब अ ग्रुप. So it is present outside the calyx, which is called epicalyx. Okay, then the next whorl is calyx. So you can see, अगर फ्लावर को अगर हम हाथ में लेकर देखेंगे, hibiscus anytime you can arrange if you want. So you can see there are 5 sepals, and you know the meaning of the word gamosepals means what? Fused. Yes, sepals are fused. Okay, similarly if you see the corolla, petals, 5 petals. अभी देखना 5 sepals है, 5 petals है. That means what? Pentamerous symmetry. पेंटामेरस का मतलब डाइकोटिलेडोन हुआ. ओके, ऐसे याद रखना. तो पॉलीपेटल्स, यू कैन से इंडिविजुअल पेटल्स कैन बी रिमूव्ड. ठीक है. एंड यू हैव लर्नड अबाउट एस्टिवेशन 4 टाइप्स. याद है कोरोला किस तरह से इंसर्टेड है? यू रिमेम्बर एस्टिवेशन, है ना. अगर वो एंड से टचिंग है तो वेलवेट, अगर एक के अंदर एक है तो ट्विस्टेड. हियर इट इज अ ट्विस्टेड वन. ओके, तीसरा है इम्ब्रिकेट, एंड फोर्थ वन इज वैक्सिलरी. ठीक है. इट इज यूनाइटेड एट द बेस. पेटल्स के नीचे देखना, बेस पे. बट यहाँ पेटल्स को थोड़ा तो सब पे टूट जाएंगे ना. से अगर एकदम ऐसे पूरा उखाड़ के निकालेंगे तो सब निकलेगा. बट टिल द बेस इफ दे आर सेपरेट, तो देन इट इज पॉलीपेटल्स. अगर सिर्फ नीचे से पूरा फ्यूज है, सिर्फ ऊपर सेपरेट है, तो गैमोपेटल्स. ओके, जैसे रोज वगैरह में यू नो कुछ लोग करते हैं ना, डैश डैश, उसका मीनिंग होता है ना. ओके, तो हियर इट इज अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड हैज अ स्टैमिनल ट्यूब. यहाँ पे देखना है पेटल्स के बेस पे, यू कैन सी द डार्क पिंक कलर हियर. वहां पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नेक्टरीज बोलते हैं. ओके, वो वहां पे फ्लावर का नेक्टर प्रोड्यूस होता है एट दिस प्लेस. ठीक है, कोरोला समझा अच्छे से. नाउ सी द एंड्रोशियम. ओके, अब एंड्रोशियम कैसा है? इसका एकदम यूनिक है. ओके, देयर आर इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स. ये जो येलो कलर के जो दिख रहे हैं, ईच वन इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टेमन. तो एज यू कैन सी देयर आर मेनी ऑफ देम, तो हम काउंट नहीं करते. ओके, तो वी जस्ट से इनडेफिनिट.
बट उसमें भी ये जो बीच का पिंक वाला पोर्शन है, दिस वन, it is a fusion of all the filaments to form a common tube. So you remember, filaments are fused, anthers are free. We say adelphi. याद है स्टेमन्स का वो कंडीशन है ना? एंड मोनाडेल्फस कंडीशन करके हमने बोला, that means all the filaments are fused to form only one common tube. It's not two groups. तो monadelphous, diadelphous, polyadelphous ऐसे हमने 3 टाइप बोले थे. This is monadelphous, hibiscus का यूनिक पैटर्न. ओके, एंड अगर हम एंथर्स को देखते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर, बहुत क्लियर व्यू है. दे आर रेनिफॉर्म, किडनी शेप दिख रहा है. ओके, एंड कितना सेल लिखा है? 2 सेल, 1 सेल सॉरी. तो वी से मोनोथिकस. एंड इसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, इफ यू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी. बिकॉज ये फ्लावर इतने बड़े हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, which agent will be doing the pollination for this plant? Butterfly. Insects. Wind. Insects. तो इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेशन करेंगे तो पोलन ग्रेन स्पाइनी रहे तो इंसेक्ट के शरीर पे चिपकेगा. हाँ. That is why pollen grains are also spiny. विंड से भी होता है ना, बट चांसेस आर देयर विंड से. ऐसा एकदम नेचर में ऐसा नहीं, विंड ऐसा बोलेगा नहीं कि इंसेक्ट वाला तो मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा करके. Okay, so it can be possible, but it is investing so much energy for producing nectar and everything. So insects are the ones which carry out the major pollination. Okay, that's why pollen grains are spiny. Okay, coming to the gynecium now. Pentacarpellary means what? नाम से ही पता चल रहा है. हाँ, 5 carpel. Correct. And syncarpus मतलब 2 वर्ड्स हमने देखा था, सिनकार्पस, एपोकार्पस. डाउन वाला. Pentacarpellary is 5 carpels. Syncarpus मतलब all carpels are fused. हाँ. Okay, syncarpus is fused carpels, apocarpus is free carpels. Okay, 5 chambered ovary. तो इसका अगर हम ovary का TS लेते हैं, okay, so here what you will see is that you will see a circular outline of the ovary. Okay, internally divided into 5 chambers. ओके, वो पिंक वाला ओवरी है. नहीं, पिंक और ओवरी नीचे रहेगा ना अंदर. ये जो ये दिस वन यू आर टेलिंग ना. हाँ. ये स्टिग्मा है. ओके. हाँ. ओके, स्टिग्मा बाहर रहेगा ना, ओवरी अंदर रहेगा. हाँ. ओके, तो ये अंदर ओवरी जो है उसका सेक्शन लेता हूं, तो आई कैन सी 5 चेम्बर्स and each one is having ovules like this. Okay, so you can see 5 chambers and here at the top you can see 5 stigma. And जो स्टाइल है जिसके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है, वो मोनाडेल्फस कंडीशन जो एंथर्स के इसी ट्यूब के अंदर से स्टाइल पास होता है. तो यहाँ पे देखना, फिलामेंट्स का फ्यूजन से ट्यूब बना हुआ है, एंथर्स फ्री है, एंड उसी अंदर से स्टाइल भी पास हो रहा है जिसके टिप पर स्टिग्मा निकला हुआ है. You can see the 5 stigma clearly, right? Exactly 5. So pentamerous condition यहाँ भी दिख रहा है. And they are said to be capitate. Capitate का मतलब है sticky. Again, that's an adaptation for insect pollination. कि insects अगर आएगा इसके ऊपर तो sticky stigma रहेगा, तो it will be able to catch the pollen grains which the insects have brought. बट ये बाइसेक्सुअल है ना, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों, तो वो एक दूसरे से भी पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करके बोलते हैं. बट नॉर्मली इन द नेचर सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड. नेचर ऑलवेज प्रिफर्स क्रॉस पॉलिनेशन. पॉसिबिलिटी है, बट उसमें क्या हो जाएगा ना, किसी एंथर्स इधर बनेगा, आई मीन पोलन ग्रेन्स यहाँ बन रहा है, स्टिग्मा इधर है, तो पोलन ग्रेन्स को इधर से उल्टा जाना पड़ेगा स्टिग्मा पे लैंड होने के. Okay, that is one thing. Secondly, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ सेम फ्लावर में, सो जेनेटिकली
it is the same genes which are mixing. So that will lead to inferiority in the next generation. Self pollination हमेशा avoid करना. 12th standard के वो lesson में हम देखेंगे detail में. But for now you understand कि self pollination does over a period of generations does not give rise to healthy offsprings. That's why opposite. And this is applicable for every living organism including human beings. Self pollination avoid करना. मतलब marriage within the family has to be avoided. Okay, because it is the same genetic stock. No? It's always better to go for outside. Obviously same species, but outside species भी चले गए तो it's a huge thing. तो nature हर चीज का balance रखता है. Okay, so it is bisexual, but it ensures that the stigma receives pollen grains from another flower and the pollen grains from here go to another flower. That's why insect pollination. समझा? Okay, and the fruit which is produced as such hibiscus में fruit नहीं बनते हैं, but whenever it is produced, because ये एक cultivated variety, nature में wild में मुझे hibiscus बहुत rarely देखने मिलेगा. So if I get a wild in the nature where the pollination is affected by fertilization, then the fruit which is produced is of a capsule type. Otherwise हम लोग इसको stem cutting वगैरह से ही grow करते हैं. Vegetative propagation. Got it? Okay. So after understanding the features, hibiscus rosa sinensis का floral formula. Okay, ये देख. It is written BR means what? Now you will tell the meanings. Bracteate. Very good. BRL करके लिखा हुआ है. इसका क्या meaning है? हाँ उसका bracteolate. अरे वाह, bracteolate. Very good. हाँ. Yes. Third one. ये third one ये actinomorph. Wonderful. This one. ये bisexual. Very good. You can. It is written EP. हाँ. EPIK. हाँ मतलब epicalix. Very good. 5 to 7. epicalix. 5 to 5 to 7 episepals. Okay. हाँ. Episepal. Whorl और उसके और इंडिविजुअल ये- मेंबर दोनों अलग अलग बोलते हैं. हाँ. K5. Calyx. Fused 5 मतलब 5 calyx fused है. 5 calyx नहीं बोलना है. Calyx एक ही है. Okay, five- calyx. कैसे बोलना है? Calyx with 5 हाँ, calyx with 5 sepals. Okay. है ना? Calyx with 5 हाँ. sepals. Gamosepalous ऐसे बोलना. Okay. C5 हाँ. मतलब Corolla corolla with. with 5 petals. Very good. And और ये androecium. polypetalous नहीं हाँ. बोलना. हाँ, No polypetal. brackets ना, तो polypetalous. हाँ, polypetal. Very good. और ये A for androecium. Infinite. infinite stamens. हाँ, infinite stamens. Gamopetalis. हाँ, पेटालस कहाँ से हो गया? Androecium. नहीं उसमें गैमो का लास्ट क्या था? Androecium के लिए गैमो नहीं आते. You will say monadelphous condition. हाँ, Monoadelphous condition. Okay. And और ये सुपीरियर गाइनोशियम. gynoecium पहले बोलना है with पहले wall का नाम बोल, फिर members के नाम बोल, number बोल दे. Then the other features. Okay. Gynoecium with 5. हाँ. क्या था ये भी? मोनोपेटालिस. 5 what? mono नहीं 5 आया. what? Gynoecium with 5 what? Potatoes? Ovules नहीं. हाँ. Individual members of a gynoecium is called what? Ovary. C for
कार्पल्स। हाँ, हाँ तो गाइनीशियम विथ 5 कार्पेल्स, पहले वो बोल देंगे, कार्पल्स। आगे बोल। हाँ 5 कार्पल्स है, फ्यूज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूज गैमोपेटल्स। अरे पेटालस इज ओनली फॉर पेटल्स, तो गाइनीशियम में भी पेटालस डालेगी तो कैसे चलेगा? तो गैमो एंड पॉली इज ओनली फॉर कैलिक्स एंड कोरोला एंड पेरियम। ओके, गैमो एंड पॉली यहाँ नहीं आएगा एंड्रोशियम गाइनीशियम में। जैसे एंड्रोशियम में मोनोडल्फस बोल दिया हमने, तो गाइनीशियम इसमें में डाइडल्फस। एडल्फी इज ओनली फॉर एंड्रोशियम, वी आर टॉकिंग अबाउट गाइनीशियम नाउ। तो गाइनीशियम में अगर फ्यूज्ड है कार्पेल्स तो द वर्ड इज सिनकार्पस, ओके सिनकार्पस। एंड अगर फ्यूज नहीं है तो एपोकार्पस। ये दोनों में से ही बोलना है सिर्फ। ओके, so you will say either gynecium with 5 carpels, syncarpus, or you will say gynecium pentacarpellary syncarpus, and then नीचे अंडरलाइन है, तो उसका मतलब सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस, ओके दोनों बताना है। अभी समझा? गुड, बट योर अटेम्प्ट वाज गुड। ओके, तो ऐसे करके और प्रैक्टिस करना है, राइट? तो दिस इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, कॉमनली बोलते हैं शू फ्लावर, यू नो वेरी वेल, इट्स एन ऑर्नामेंटल श्रब, एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं ये शू पॉलिश बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा इसी की वजह से इसका नाम शू फ्लावर पड़ा हुआ है। ओके, चाइना रोज भी बोलते हैं। ओके, इसके अलग अलग वैरायटीज आते हैं, यू सॉ इन द अदर पिक्चर व्हाइट वन था, ये पिंक वाला है, तो दैट वे इट इज अवेलेबल। ठीक है, तो मालवेसी का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस क्लियर है, समझा कैसे फीचर्स याद रखना है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली वी हैव टू लुक एट सम अदर प्लांट्स आल्सो इन द सेम फैमिली। ओके, तो जैसे हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस वी लर्न, बट अदर देन दैट मालवेसी में दूसरे प्लांट्स भी हैं which are economically important, like we cannot study every genus and every species, but some other important plants also we can learn. So you know this one, ये हमने देखा था। हाँ भिंडी का ना अरे ओकरा। वाह, वेरी गुड। तो उसका नाम है एबेलमॉशस एस्क्युलेंटस, वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी ऑफ देम, है ना? दैट इज भिंडी, ये नाम प्रोनाउंस कर। एबेलमॉकस। मॉकस नहीं रे, एस्क्यू एबेलमॉशस एबेलमॉशस एस्क्यूलेंटस। एस्क्युलेंटस, करेक्ट, इट इज द ओकरा या भिंडी, एंड इसके जो फ्रूट्स होते हैं वी हैव सीन these are commonly used as vegetables. तो ये भी याद रखना है कि एबेलमॉशस एस्क्युलेंटस ओकरा या भिंडी बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली। ठीक है, सिमिलरली दिस वन, ये कौन सा है? कॉटन का। वेरी गुड, इट इज अ कॉटन प्लांट, गॉसिपियम हर्बेशियम, बोलना। ग्लॉसिपियम हर्बेशियम। करेक्ट। ओके, तो दिस इज द कॉटन प्लांट, एंड इसके सीड्स के ऊपर एपिडर्मल आउटग्रोथ आता है फाइबर वाला, दैट इज व्हाट वी हार्वेस्ट एज द सोर्स ऑफ फाइबर, कॉटन फाइबर। ओके, एंड इसके जो रूट्स है दे आर यूज्ड फॉर फीवर। ओके, सीड्स कभी कभी कैटरेक्ट के कंडीशन में यूज होते हैं, लाइक एवरी प्लांट हैज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस, so this you can remember, cotton plant Gossypium herbaceum also belongs to Malvaceae। ठीक है, ये दो प्लांट के एग्जांपल याद रख सकते हैं। Malvaceae is clear, first family, any doubt in Malvaceae? Now let's go to the second family, that is Leguminosae, उसका और एक नाम है Fabaceae। ओके, Leguminosae is a very big family, काफी बड़ा फैमिली है, बिकॉज इन जनरल द प्लांट्स अंडर दिस फैमिली हम उनको बोलते हैं लेग्यूम्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, किसी भी किराने के शॉप में जाओ तो चना दाल, मूंग दाल, तूर दाल, उड़द दाल, ये सारे जो होते हैं दे बिलोंग टू लेग्यूम्स। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स, ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, किडनी बीन, ये सब बिलोंग करते हैं लेग्यूम्स। ओके, वाइल्ड पी, स्वीट पी, लेग्यूम्स। तो बीन्स, पीस,
Okay, all the pulses, dals, they belong to legumes. So it's a big family. Okay, like you don't have to go into details of everything, but just a brief introduction about leguminous. ये सारे examples याद रख सकती है. ये देखना, this is Arachis. Some of them which are key ones I will show you here. Arachis hypogaea. ये पता है plant? You must have eaten this. कॉमन नेम क्या है इसका? वो बता दूंगा तो इजी है ना फिर. ये है अपना ग्राउंडनट, मूंगफली, शेंगदाना. हाँ है ना, राइट. व्हेन यू हैव दैट ढाबेली, तो ढाबेली के अंदर डालते हैं ना वो फ्राई किया हुआ, राइट, दैट इज मूंगफली. तो ये एराचिस हाइपोजिया. एज मेनी पॉसिबल जितना हो सके लर्न करना, प्रोनाउंस कर. एराचिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट. एरेचिस हाइपोजिया. ठीक है, ये दोनों जाने थे, नॉट वेरी कॉमन. बट ये वाला देख, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया. इंडिगो डाई करके एक्सट्रैक्ट होता है इसके फ्लावर्स में से. ओके, इसके कॉमन नेम इसको इंडिगो प्लांट बोलते हैं. स्मॉल हर्ब, बट इसमें से इंडिगो डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, दैट इज इंडिगोफेरा बट ये तो टिंक्टोरिया. पिंक है ना, तो ब्लू कलर कैसे? नहीं, अलग अलग शेड्स होते हैं. ओके, अलग अलग शेड्स होते हैं. सी, इंडिगोफेरा इज अ जीनस. इसके बहुत सारे स्पीशीज हुए ना. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर हैविंग बीन्स या फिर वटाणी वगैरह खाते हैं, है ना, सोयाबीन वगैरह बन गया, ऐसा कुछ अगर खा रही है तो व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज? फैमिली फैबेसिए. वेरी गुड, लेग्यूमिनोसी फैबेसी. ठीक है. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द फीचर्स. ये प्लांट याद है, प्रोमिनेंटली हमने देखा था, है ना, क्लाइटोरिया टर्नाटिया. तो हम लोग यहाँ पे स्पीशीज वाइज नहीं देखेंगे, वी विल सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स. तो जैसे ये प्लांट हुए तो लेग्यूमिनोसी बीइंग अ वेरी वास्ट फैमिली, इट कैन हैव ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, रूट्स. हर्ब्स जो होते हैं, हर तरह के प्लांट हो सकते हैं. ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेग्यूम्स इज दैट उसके रूट्स के साथ देयर आर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट. सो इफ यू प्लक आउट अ प्लांट एंड ऑब्जर्व द रूट्स, उसके ऊपर रूट नोड्यूल्स नजर आए. You know what are root nodules? हाँ, रूट्स के ऊपर ये छोटे छोटे कैसे बोला. नोड्यूल जैसे आ जाते ना. अच्छा हुआ, हाँ. मुझे लगा पिंपल्स बोलेगी अभी. ओके, सो यहाँ पे देर आर स्मॉल आउटग्रोथ्स और स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स. ऐसे बहुत सारे दिखेंगे. इट विल बी टू मेनी ऑफ देम. इन द अदर लेसन आई विल शो यू पिक्चर. ओके, बट यहाँ पे इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं. ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर. So if I take these nodules and I crush it and observe under the microscope, I will see some bacteria present inside this. Can you tell which bacteria? ब्लू 10th standard में था. नहीं. नहीं 10th standard में था, introduction to microbiology में, if you remember. Biofertilizers we had learned. सिम्बायोटिक होता है. Symbiotic होता है, correct. Something with the letter R. रोडो करके. नहीं. You remember something called rhizobium? हाँ. तो ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के कॉलोनीज होते हैं. सो इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन जो होते हैं, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजन, 78%. सो दैट विल बी फिक्स्ड बाय दिस बैक्टीरिया इनटू द सॉइल. फिक्स्ड का मतलब है नाइट्रोजन N2 will be converted into ionic form, that is nitrates and nitrites, and then these nitrates and nitrite ions will be available to the plant, because plants जो होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए, बट वो गैसियस नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते. that can easily enter the plant through the stomata also, but फिर वो यूज नहीं कर पाते. they can use nitrogen only in the form of nitrates and nitrites, जो ये बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं. एंड इन रिटर्न बैक्टीरिया को क्या मिल रहे हैं,
they are getting the shelter and the food. So that's why it's a symbiotic association. So agriculture, horticulture में farmers क्या करते हैं? They use this rhizobium culture while growing other plants. तो plants में जो fruit, seeds वगैरह होते हैं तो they come out with more yield. तो ऐसे करके हम rhizobium को biofertilizer की तरह use करते हैं. It's very productive. Okay, तो ये legumes का characteristic है. ठीक है? Talking about the stem, if it is a shrub, herb or a tree, it's an erect stem. If it is a climber, it's a slender stem. तो कुछ plants climbers भी होते हैं. Okay, leaves में अगर बोला जाए, now you know what is alternate. Okay, pinnately compound रहेगा या तो simple leaf रहेगा, depends upon the species. Pinnately compound means you know compound leaf now. Midrib is now a rachis divided into tiny leaflets. So we call it pinnately compound. Simple leaf जैसे hibiscus में देखें. Okay, leaf का जो base है it is said to be pulvinate. Pulvinate का मतलब है leaf का base में there will be a small swelling petiole के ऊपर, उसको pulvinate बोलते हैं. Okay, stipulate है, stipules are present. The venation is reticulate, unicostate reticulate. Okay, these terms now you are aware about. Fruit को बोलेंगे legume, also called as a pod. ये देखना, इस तरह के fruits होते हैं ना. You remember that एक ट्री हमने देखा था, लंबे लंबे pods थे. MIDC. हाँ, वो इधर भी है. Yes. मंदिर है ना उसके सामने. देखा क्या बाद में? हाँ. अरे वाह, वेरी गुड. ये कौन सा AS एकेडमी जाते हुए मंदिर आता है ना एक, Okay, उसके okay. सामने ही ट्री है, उधर Yes, है. yes, correct, correct. Good observation, very good. So that's a legume. तो ऐसे बहुत सारे plants. Next time मैं उस तरफ आऊंगा तो we will see once again. बाहर कहीं भी मिलेंगे तो आपको plants को देखना ही है ना. Right? So this type of a fruit is called legume, जिसके अंदर seeds होते हैं. Okay, and seed can be one to many. ये देखना, इसके अंदर you can see, right? Depends. And non-endospermic seed, you know the meaning of this. Cotyledons become thick and fleshy. Endosperm is used in the sense stored in the cotyledons. Okay, and ये floral formula याद रख सकते हैं. Percentage मतलब what is the meaning? बायलैटरल. हैं? नहीं सॉरी, परसेंटेज क्या था? by ठीक है, bilateral what? बायलैटरल. Bilateral symmetry, but what is the other word? क्या एक्टिनो, नाम ही याद नहीं रहता ठीक से. Something with Z. हाँ, धीरे धीरे याद होगा. जाइगोफॉर्मिक. Zygomorphic. मॉर्फिक. Okay, yes. ये bisexual, you know that. बाइसेक्सुअल. हाँ. अभी यहाँ पे K का डिस्क्राइब कर, मैंने बोला वैसा. कैलेक्स विथ 5 By what? सेपल्स. हाँ. गैमा पेटालिस. Gamo, पेटालिस. कैलिक्स है, सेपल्स बोला तो पेटालस कैसे हुआ? नहीं. गैमो सेपैलस. सेपैलस. ओके. सेपैलस पेटालस. पेटालिस. बोलते रहना ऐसे, इतनी बार याद कर अपने, जब तक अपना खुद का नाम नहीं भूल जाती. हाँ. ओके, व्हाट अबाउट सी? हाँ, कोरोला विथ 1+. अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेगी बता? आई शोन लास्ट टाइम. कोरोला विथ 1. नहीं, इसको ऐसे बोलना है, कोरोला विथ 5 petals arranged in 3 whorls. ओके. 1 + 2 + 2 ऐसे करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ने कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में नहीं बताया. It will differ from one species to another. But for your understanding कि how the floral formula is described, you will say corolla with 5 petals arranged in 3 whorls. ओके, बट इसमें एक गैमोपेटालिस है ना? Yes. So 2 whorls have polypetalis, 1 whorl has gamopetalus. ऐसे पूरा describe करना. हाँ, Okay. ये
यस, ए का बता। Androecium with 10 stamens. करेक्ट। इसको कैसे वर्ड्स ही बोलते हैं। अरेंज्ड इन Arranged in two टू व्हाट, stigma. या Stigma. अरेंज्ड इन भी बोलने की जरूरत नहीं है। एंड्रोशियम विद 10 स्टेमन्स, डायडेल्फस। Diadelphus. Okay. ठीक है, दैट मीन्स हाँ. 9 and 1, 2 groups are there. Okay. Getting it? Okay, so 2 groups of stamens जिसमें filaments are fused and anthers are free. So we are just calling it as diadelphous. Okay. अब जी के बारे में बता, या 1 लिखा हुआ है। Gynoecium with 1 calyx. हाँ, कैलिक्स। नहीं, sorry. Gynoecium with 1 carpel. हाँ, And gynoecium is superior. ovary superior, Okay, ovary. flower is hypogynous. ठीक है, and you did not mention about syncarpus, apocarpus. Apocarpus है। स्नेहा, कितने कार्पेल्स हैं? एक मिनट। How many carpels you mentioned? 1. 1 में फ्री या फ्यूज कैसे बोल सकते हैं? एक ही है ना। लेकिन वो अंदर होगा ना। कहीं भी रहने दो, बट Okay, एक ही किसके साथ फ्यूज होगा? So when it नहीं, is मैं वो 1, फ्लावर का अरेंजमेंट का मैंने सोच जानबूझकर रही थी। पूछा सिनकार्पस की एपोकार्पस। When it is 1, there is no question of apocarpy या सिनकार्पी, Okay. because उसमें बता ही नहीं सकते ना। It is just single. मतलब वो एक अंदर सिर्फ एक ही रहेगा। एक ही रहेगा, तो एक ही है तो फ्यूजन या फ्री होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। Got it? So we'll just say gynoecium monocarpellary, superior ovary, hypogynous, ऐसे। अभी समझा? ठीक है, so that way you are going to describe it. Okay, now when you talk about family Leguminosae, now as I said कि काफी बड़ा family, तो under family Leguminosae there are 3 sub families. तो एक है सिजाल्पिनोइडी या सिजाल्पिनेसी, दूसरा है माइमोसॉइडी या माइमोसेसी, एंड थर्ड वन इज पैपिलियोनोइडी और पैपिलियोनेसी। ये 3 बड़े सब फैमिलीज हैं, ऑल बिलोंगिंग टू लेग्यूमिनोसी। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ ईच वन, जस्ट सिर्फ नाम बता रहा हूं। दिस वाज द प्लांट यू मेंशनड, आई गॉट फर्स्ट, जस्ट वन एग्जांपल अंडर ईच। सिजाल्पिनोइडी, the most common genus is Caesalpinium. ये प्लांट हमने देखा था, बट विदाउट द फ्लावरिंग, वी हैड सीन द पॉड्स। जो एमआईडीसी में लंबे लंबे पॉड्स वाले थे ना, स्टेट फ्लावर ऑफ केरला मैंने बताया था, याद है? ये अभी फ्लावरिंग में नहीं है, राइट नाउ इट इज नॉट इन फ्लावरिंग। इसका नाम है कैशिया फिस्ट्यूला, ओके, आल्सो कॉल्ड द इंडियन लेबरनम, बहावा। ठीक है, नाम एक बार प्रोनाउंस कर, कैशिया फिस्ट्यूला। कैशिया फिस्ट्यूला। कैशिया जो जीनस आता है ना, टाकला हमने देखा था, याद है? सेना करके बोला था, वो भी कैशिया है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, देन दिस आई डोंट नीड टू आस्क यू, यू विल नेवर फॉरगेट। टच मी नॉट। करेक्ट, तो उसका बॉटनिकल नेम क्या बताया था? करेक्ट करेक्ट, माइमोसा। हाँ, क्या गया था? माइमोसा, पी से पुडिका, पुडिका, माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट, छुई मुई, शर्मीली, बहुत सारे नाम। ओके, बट यू नो द स्पेशलिटी, जैसे माइमोसा बोला था तो फैमिली का भी नाम देख, माइमोसॉइडी। ठीक है, ऐसे याद रखना।
बहुत बारीक बारीक लीफलेट्स होते हैं माइमोसॉर्डी में, और उसका फ्लावर्स भी एकदम यूनिक रहते हैं। इस तरह का एंथर्स कैसे बाहर निकला हुआ देख, बहुत सारा। सर बट इसका अगर मतलब ये अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट में है लिफ्ट, तो उसका अगर एक लिफ्ट तोड़ दिया, एक ही पीस, तो उसका जो सामने वाला है वो फिर बंद नहीं होगा? एक्चुअली इट इज नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मैकेनिज्म जो है ना इसे बंद हो जाने का, हाँ। वो उसके अंदर के एनाटॉमी में देयर आर समथिंग कॉल्ड फॉलिंग मूवेबल स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑल, वो सब प्रेजेंट है। तो जिस लीफलेट के ऊपर प्रेशर पड़ा वो बंद हो जाए। ओके, तो एज सच इतना इफेक्ट नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ब्रेक इट। वो स्टार्च ग्रेन्स अफेक्ट हुआ तो बंद नहीं होता। गुड क्वेश्चन। ओके, एंड ये थर्ड वन, ये फ्लोर अभी जो दिखाया था, एंड वी हैव सीन आल्सो पैपिलियोनॉइडी, दिस इज क्लाइटोरिया टर्नेटिया। ओके, लाइटोडिया टर्नर टर्नेटिया या टर्नेटिया। टर्नेशिया, ठीक है। इसका जो पेटल्स हैं पैपिलियोनॉइसी में, पैपिलियोनॉइडी में, इफ यू सी द पेटल्स, इसका यूनिक एक टाइप का एस्टिवेशन आता है। We have seen 4 types of estivation: valvate, twisted, imbricate, and fourth one vexillary. Vexillary में you remember the type? एक बड़ा petal होगा, then there will be 2 smaller ones, and then there will be 2 inner ones. Estivation I'm speaking about. हाँ, वो इस टाइप के लीफ में भी था ना estivation, वैसे। हाँ, इस टाइप के estivation को vexillary बोलते हैं। ओके, वेक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो सिर्फ इस फैमिली में देखने को मिलेगा, पैपिलियोनॉइडी। इसीलिए इस तरह के कोरोला को भी पैपिलियोनेशियस कोरोला करके बोलते हैं। Got it? That's a unique point about this one. You remember, papilionoidy या papilionaceae has got vexillary type of estivation. ठीक है, क्लियर हुआ? तीनों फैमिली, सब फैमिली नाम याद रखना है, जस्ट वन रैंडम एग्जांपल फॉर ईच वन। तो फैमिली लेग्यूमिनोसी इज अल्टीमेटली अ वेरी बिग फैमिली, ऑल द लेग्यूम्स। ठीक है, now under leguminosae in general, some of the important plants, this is glycine max, सोयाबीन, पता है ना, खाने में यूज करते हैं इसके सीड्स। तो ये उसका प्लांट, बहुत सारे फार्मर्स इसको कल्टीवेट करते हैं बिकॉज दे आर वेरी commonly used in the market. It has got lot of protein content. Okay, that is glycine max, edible seeds के लिए कल्टीवेट किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम whenever you are having सोयाबीन, क्या रिवाइज करना है? ग्लाइकिन मैक्स, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन मैक्स मैक्स, belonging to family, लेग्यूमिनोसे। correct. Okay, next one, ये पता है, ये हमने देखा भी था, है ना, इमली। इमली का पेड़, राइट, टैमेरिंडस इंडिका। इमली को टैमेरिंड बोलते हैं, तो इजी टू रिमेम्बर, विल जस्ट से टैमेरिंडस इंडिका। तो ये इमली, इसके फ्रूट्स ऐसे आते हैं मार्केट में, देखा रहेगा, दिस इज व्हाट वी यूज। एंड उसका इमली का जो खटास होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन, उनको मन करते हैं इमली बहुत खाने, राइट, दैट इज, इट हैज गॉट दैट टेस्ट। ओके, एंड इट इज ग्रोन, काफी बड़ा पेड़ भी होता है, छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। इट हैज गॉट अ गुड कैनोपी आल्सो, प्लांट उसके लिए भी किया जाता है, एंड उसके सीड्स भी एडिबल है, तो वी कैन यूज इट फॉर दैट पर्पस आल्सो। तो फूड आइटम्स में हम लोग डालते हैं, समोसे के साथ इमली का चटनी, भी नो दैट, राइट। तो whenever you are having a samosa with imli chutney next time, you are going to revise Tamarindus indica, इंडिका। belonging to leguminosae. Okay. Okay, 2 more. ये देखा रहेगा gardens में, very commonly we had also come across this very commonly grown ornamental plant in the garden. ऐसे multicolored flowers होते हैं, श्रब होता है, बट गार्डन्स में बहुत कॉमनली लगाते हैं। यू गो टू एनी गार्डन या सोसाइटी कंपाउंड्स में भी कभी कभी लगा देते हैं। दिस इज सिजलपीनिया पल्चेरिमा, शंखासुर करके बोलते हैं, हमने देखा था ये मेडिसिन, ठीक है, सिजलपीनिया पल्चेरिमा, बोल। सीजलपीनिया पल्चेरिना,
Pulcherrima. Correct. Okay, that is Shankhasur. Good. And ये तो पता ही है. Physaum sativum. क्या बात है. Physaum sativum common tea plant. So next time कभी मम्मी ने मटर दिया छिल के निकाल के दे तो क्या रिवाइज करना है? Physaum sativum. Physaum From sativum leguminosum. leguminosae, From and this was the leguminous. plant which was used by Gregor Mendel. हाँ, वो Genetics के बारे जेनेटिक्स में. का फाइंड करने के लिए. Exactly. So you can see the pods and उसके अंदर seeds होते हैं, है ना? तो नेक्स्ट टाइम मटर छिलने बैठो तो रिवाइज करना है. The fruit is a pod having many seeds, parietal placentation. है ना? तो डेली लाइफ में सब कितने सारी चीजें देखना. Understood leguminosae? Okay. Let's go to the next family, that is family Solanaceae. Two more families, right? Solanaceae. Solanaceae समझ लेना कि काफी हद तक एक वेजिटेबल फैमिली. ओके, वेजिटेबल फैमिली का मतलब क्या? बहुत सारे कॉमनली ईटन वेजिटेबल्स बिलोंग टू दिस फैमिली. दो ऐसे फैमिलीज है जो जिसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स इंक्लूड हो जाते हैं. वन इज दिस वन सोलानेसी, एक और है कुकुरबिटेसी, वो भी पूरा वेजिटेबल फैमिली. ओके, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर हैविंग पोटैटो या टोमेटो या ब्रिंजल, ऑल दैट कम्स अंडर सोलानेसी. खाते वक्त मुंह में अगर मिर्ची चबा दिया, आंख से 5 आंसू आ गए, तो पहले रिवाइज करने का सोलानेसी. चिली प्लांट बिलोंग्स टू दिस. ठीक है. सो ये प्लांट हमने देखा था, याद है? सी दिस फ्रूट्स. हाँ. दो जगह पे देखे थे हमने. हाँ, दो जगह एक पे देखा था. महेश्वर मंदिर के पास गए थे एंड दूसरे टुवर्ड्स हाँ. अंबेली व्हेन वी वर वॉकिंग. माइमोसापुरी का जो देखा था उसके आसपास वी हैव सीन दिस आल्सो, है ना? तो ये दिस इज अ प्लांट कॉल्ड फाइसालिस मिनिमा. ओके, बिलोंग्स टू सोलानेसी. ठीक है. तो इसमें भी कैसा है? हर्ब, इट्स अ स्मॉल हर्ब. ठीक है. वी हैव सीन दैट लीव्स में पेटियोलेट है, देयर आर पेटियोल्स प्रेजेंट, एक्सटिप्युलेट है, राइट? मार्जिन देखना कैसा है? टूथ या लोब्ड मार्जिन. कैन यू सी दिस? इट इज नॉट कंप्लीटली सीरेट बट ऐसे लोब्स जैसे. लीफ विथ एक्यूट एपेक्स. दिख रहा है? मतलब डेंटेड है ना? नॉट एग्जैक्टली डेंटेट. डेंटेट मतलब प्रॉपर टीथ लाइक पैटर्न होगा. ओके. जैसे ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है. डेंटेट मतलब ऐसा रहेगा. ये लोब्ड है मतलब इट इज हैविंग पार्टीशंस. ऐसे अगर करके हम पार्टीशन कर सकते, इसलिए टूथ रियल हो गया. समटाइम्स यू कैन से इट इज इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इसलिए दोनों लिखा हुआ देखो. ओके. इनफ्लोरेसेंस देखा जाए तो सॉलिटरी एक्सिलरी, जैसा हाइबिस्कस में था वैसी, एट वन पॉइंट जस्ट वन फ्लावर कमिंग अप. ओके. फ्लावर है पेडिसिलेट, देयर इज अ पेडिसिल प्रेजेंट. रेगुलर फ्लावर मतलब ऑल द whorls आर देयर. एक्टिनोमॉर्फिक उसको रेगुलर बोलते हैं. ओके. बाइसेक्सुअल यू नो द मीनिंग. हाइपोगाइनस आल्सो यू नो द मीनिंग. ओके. नाउ ये देखना फ्लावर कैसे दिख रहा है. यू कैन सी द कैलिक्स. ये दिख रहा है पीछे ग्रीन कलर का, वो कैलिक्स है. ये जो दिख रहा है ये भी कैलिक्स है. you can see there are 5 sepals, and now you can see all of them are fused. Can you observe that condition? They are not free, पूरा fuse होके बना हुआ, and it is properly bell shaped. Clear दिख रहा है? Right? Persistent calyx की मतलब fertilization हो गया, fruit बन गया, still the calyx is present. तो जैसे टोमेटो में भी हम लोग देखते हैं कैलिक्स, ब्रिंजल में भी देखा रहेगा, बैंगन में ऊपर ऐसे कैलिक्स तैयार रहते हैं. मार्केट में फ्रूट खरीदते वक्त भी दिखते हैं. तो वो पर्सिस्टेंट कैलिक्स है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आल्सो द कैलिक्स डज नॉट बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ, दे रिमेन ऑन द प्लांट. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द कोरोला, you can see the greenish white to yellowish colored petals. अब यहाँ पे दिख रहा है fused condition, पूरा ऊपर तक fused है. देखो अभी इसको बोलेंगे proper fused condition. Gamopetals, 5 of them.
कंपैन्युलेट का मतलब है अगेन बेल शेप्ड, एकदम प्रॉपर मंदिर का घंटी जैसा लटका हुआ था। ओके, दैट्स हाउ यू कैन डिस्क्राइब, राइट। ये देखना, इसको कट करेंगे तो अंदर फ्रूट, इतना अच्छा नाइस मटके जैसा फ्रूट है, देख। हाँ लग रहा तोड़ा भी था ना। हाँ, ओके, तो उसके स्टेमन्स अगर देखेंगे तो देयर आर 5 स्टेमन्स, एपीपेटालस। नाउ एपीपेटालस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? याद है? 5 नहीं नहीं, नहीं, एपीपेटालस नो मींस, पेटल्स। एपीपेटालस का मतलब है स्टेमन्स फ्यूज्ड विद द पेटल्स। पेटल्स ओके। Yes. Okay, that is called epipetalous. All anthers are almost equal in length, all the stamens. Anthers are oblong, मतलब elongated ones. And ऐसे लंबे तरीके से डिहाइज होते हैं, elongate longitudinally डिहाइज होकर anthers को, pollen grains को रिलीज करते हैं। ओके, gynoecium देखना, bicarpellary syncarpus. Now you know the meanings. 2 carpels fused. Superior ovary. ओवरी बाइलोक्यूलर, मतलब इंटरनली देयर आर 2 चेंबर्स ओवरी में, देयर इज अ लार्ज डिस्क प्रेजेंट। ओके, मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसका मतलब क्या है? सी, अगर मैं ओवरी का सेक्शन लेता हूं ना, तो इट विल बी लाइक देयर विल बी 2 चेंबर्स लाइक दिस इंटरनली। ओके, इन बिटवीन देयर इज अ स्वोलन डिस्क लाइक दिस, एंड इसके ऊपर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं अंदर। I'll be able to see like this under the microscope. Okay, and placenta is swollen. ये देखना, ये दिख रहा है ना, ये swollen placenta है पूरा। Okay, style is a simple one. Stigma again bilobe, because 2 carpels है ना, तो stigma में भी 2 लोब दिखेंगे। So you'll see the bicarpellary condition throughout. ठीक है, and इसका जो fruit आएगा, it is said to be a berry. तो टोमेटो जो होता है वो भी बेरी है, ब्रिंजॉल भी बेरी है, चिलीज इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ बेरी। ओके, इट इज एनक्लोज्ड इन अ पर्सिस्टेंट एनलार्ज्ड कैलिक्स। ये जो दिख रहा है ये अंदर फ्रूट है, देखना, इसको बेरी बोलेंगे, बट उसके ऊपर पूरा कैलिक्स का कवरिंग, 5 to 10 रिप्ड कैलिक्स। ये जो डार्क ग्रीन लाइंस दिख रहे हैं ना उसके ऊपर, उसको बोलेंगे रिप्ड। So if you count, there will be about 5 to 10 of them. उसी के लाइन से अगर हम तोड़ सकते हैं उसको, तो वेरी यूनिक हुआ, समझा? ओके, तो फ्लोरल फॉर्मूला रेडी? यस, ईबीआर मतलब ब्रैक्टियोल नहीं, एपी ब्रैक्टेट। ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टेट ओके। इट इज विदाउट अ ब्रैक्ट। ओके, ये सेकंड वन, एक्टिनोमॉर्फिक, करेक्ट, bisexual, वेरी गुड, calyx with 5 sepals, gamosepalous, वंडरफुल, अभी समझा बराबर, गुड। corolla कोरोला, कोरेला with नहीं, corolla sorry corolla with 5 petals, gamopetales, करेक्ट, और फिर androecium with 5 stamens, gynoecium। एक और दिख रहा है ना ऊपर, ऐसे लाइन बना हुआ दिख रहा हाँ है, ऊपर उसको तो वी विल कॉल इट, अभी एक जॉइंट वर्ड का में मीनिंग रहते बताया, हैं। अभी एक वर्ड बताया था मैंने, एपीपेटालस। एपीपेटालस ओके। Okay, so you will say androecium with 5 stamens free from each other, epipetalous. ओके Okay, and हाँ, and gynoecium with 2 carpels, hmm, 2 carpels, so 2 carpels है, तो we can use the word bicarpellary. bicarpellaries हाँ। Correct. And because they और are ये
फ्यूज्ड, तो क्या बोलेंगे? साइनोमॉर्फस। हाँ बाप रे, डोंट नहीं इन्वेंट न्यू वर्ड्स, जो है वही याद रखना। नहीं एस सिनकार्पस, क्या था वो, सिनकार्पस, हाँ यस, सिनकार्पस। एंड गाइनो ओवरी इज सुपीरियर। वेरी गुड। एंड फ्लावर इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ओके हाँ वो भी बोलना एंड में। Yes, ovary superior, flower hypogynous. It's understood one and the same, but समझ रहे हैं okay. हाँ So अभी जो हमने तीन families देखे, Malvaceae, Leguminosae and Solanaceae, all three are examples of families from dicotyledons. हाँ Okay, तो ये जो plant हमने देखा, this Physalis minima, it's a bitter plant, appetizer की तरह use किया जाता है to some time. That means it increases your hunger. And tonic, that means it will provide energy when you consume it. So abdominal complaints के लिए इसका यूज किया जाता है, but it has to be grown separately and then used. ऐसे गटर वगैरह के पास ग्रो होगा तो we don't prefer that. Okay, now under Solanaceae, take a look at some other important plants. Okay, very common ones which you are aware about. ये जैसा हमने देखा था Physalis, उसका दूसरा species. The one that we studied now was Physalis minima. This is Physalis peruviana. Okay, we have Physalis correct. peruviana. इसको बोलते हैं गूसबेरी. ओके, एक और प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, एंड दैट इज योर आमला. बट उसको बोलेंगे इंडियन गूसबेरी. दिस इज ओनली गूसबेरी. ओके, सो समटाइम्स वर्नाक्युलर नेम्स कैन बी ओवरलैपिंग एंड कंफ्यूजिंग, बट ये भी फ्रूट खाया जाता है. ठीक है, हमने भी फाइसालिस देखा था. द टू स्पीशीज ऑफ फाइसालिस वी हैड सीन. वन वाज फाइसालिस मिनिमा, अदर वन दैट वी सॉ वाज फाइसालिस एंगुलाटा, जो अम्बिवली में देखा था. ओके, दिस इज फाइसालिस पेरुवियाना. ये देखा है? हाँ ये भी देखा था. नॉट एग्जैक्टली दिस वन. ये टाइप जैसा था कुछ. ये है रजनीगंधा. नहीं नहीं, रजनीगंधा नहीं. इसका नाम है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, एंड इसको कॉमनली बोलते हैं रात रानी. ओके, इट इज कॉल्ड एज द रात रानी, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम. सी द वर्ड इज नॉक्टर्नम. नॉक्टर्नल का मतलब है विच इज एक्टिव एट नाइट. ये रात को ही खिलेगा, दिन में गिर जाएगा. कुछ फ्लावर्स ऐसे, इसलिए इसको रात रानी बोलते हैं. तो नाइट ब्लूमिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के लिए इसको ग्रो किया जाता है. ओके, दैट्स द नेम सेस्ट्रम नॉक्टर्नम. बोलो. सेस्ट्रम नॉक्टर्नम. वेरी गुड. ओके, ये तो पता ही है, इसके बिना अपना लाइफ चलना मुश्किल है. पोटैटो. करेक्ट, एंड दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम. ओके, तो फैमिली का नाम है सोलानेसी, प्लांट का नाम है सोलानम. ठीक है, सोलानम ट्यूबरोसम. नेक्स्ट टाइम आलू का सब्जी खाने बैठो, या मसाला डोसा खाने बैठी, या आलू के पराठे खाने बैठ गई, तो क्या रिवाइज करना है? Solanum tuberosum. Very good. The potato plant, and the tubers are edible. That's why we grow it as a vegetable plant. Okay. ये भी जानती है? Brinjal. Brinjal, also known as the eggplant. इसका नाम है Solanum melongena. बोल. Solanum melongena. तो घर पे कभी अगर बैंगन का भरता बन रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू रिवाइज Solanum melongena, या जाके मम्मी को बोलने का Solanum melongena का भरता बना के दे करके, तो बाद में डिसाइड करेंगे किसका भरता बनाना है. ओके, दैट्स द ब्रिंजल या एग प्लांट. अगेन वेरी न्यूट्रिशियस, एंड इसके भी मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज आते हैं. ये एकदम डार्क पर्पल कलर का होता है, कुछ ऐसे लाइट व्हाइट शेड का होते हैं. सम आर स्मॉल इन साइज, सम आर बिग वंस, बट दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी टेस्टी आल्सो, है ना. And it is cultivated for its fruits which are used as a vegetable. So now you know the difference between a fruit and vegetable.
ठीक है, तो ये भी एक प्लांट है। इसके अलावा टोमेटो प्लांट, चिली प्लांट, दे ऑल कम अंडर सोलेनेसी। ठीक है, लेट्स गो फॉर द लास्ट फैमिली ऑफ द डे, दैट इज फैमिली लिलिएसी। तो हमने 4 फैमिलीज पढ़ने हैं। तो 3 ऑफ द डाइकॉट फैमिलीज वी हैव सीन, दिस वन इज अ मोनोकोटिलिडोनस फैमिली, दैट इज फैमिली लिलिएसी। फ्लेम लिली है ना? करेक्ट, वेरी गुड, दैट्स अ फ्लेम लिली। ओके, तो ये एलो फैमिली बोल सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है लिली फैमिली, ऑल टाइप्स ऑफ लिलीज। ओके, तो इसमें अपना ऑनियन प्लांट भी है, विल सी दैट एलोवेरा, ऑनियन, all these belong to Liliaceae. Okay, it's a monocot family. So when you talk about Liliaceae as such, इसमें they are mostly all perennial herbs. Monocots में mostly the plants are herbaceous in habit, herbs. Okay, and the stem has got rhizomes under the ground. ठीक है, उसके थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, तो राइजोम्स होते हैं, स्टोलॉन्स होते हैं, दे कम अंडर दिस वन। लीव्स में बेसल लीव्स होते हैं। बेसल का मतलब है कि अभी स्टेम के ऊपर लीफ आते हैं, तो लीफ एट द बेस विल कंप्लीटली कॉइल अराउंड द स्टेम, कवर द स्टेम, उसको बेसल बोलेंगे। ओके, अल्टरनेट यू नो द मीनिंग, फाइलोटेक्सी। लीनियर मतलब elongated, लंबे लंबे लीव्स होंगे। Exstipulate, you know that. And because it's a monocot family, so venation will be parallel. Now you know that. Okay, fruit को बोलेंगे या तो capsule या very rarely a berry, depends from one species to another. Okay, नाम याद रखना। And seeds are endospermous, they contain endosperm, cotyledon is thin and papery. Okay, floral formula, BR means Bracteate, correct, actinomorphic, yes, bisexual, करेक्ट। अच्छा, ये फोटो में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दिख रहा है। हाँ, एंथर्स कितने काउंट कर? आंसर 6 है। कैन यू सी द ट्राइमेरस कंडीशन? हाँ हाँ, ना, मल्टीपल ऑफ, करेक्ट, मोनोकॉट है ना, तो ट्राइमेरस। यहाँ पर देखना, ये ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स है, तो सेक्शन लिया हुआ है। कैन यू सी हाउ 4 मेनी, फिश है ना? कितना कितना काउंट कर? 6। करेक्ट, तो अगेन ट्राइमेरस। हाँ, ये सब ट्राइमेरस कंडीशन मोनोकॉट में नजर आएगा। इवन द पेटल्स, नॉट द पेटल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेरियांथ। करेक्ट, मोनोकॉट्स है ना, तो पेरियांथ रहेगा। हाँ, The perianth will consist of perianth will consist of 6 tepals, arranged in arranged in gamotepalous. 2 whorls of 3 each. हाँ, 2 whorls of 3 each. गैमोटेपैलस भी बोलते हैं या गैमोफाइलस बोलते Okay. हैं। ओके, तो पेरियांथ है तो कैलिक्स कोरोल अलग से नहीं बताना है, ओनली पेरियांथ। ओके, नेक्स्ट। Next. पहले क्या बोलूं? A for I for androecium. very good. With 6 stamens. Arranged in 2 arranged in 2 groups of 3 each. 2 ये groups एक्चुअली of स्पीशीज 3 लेवल पे each. डिपेंड करता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज 3 स्टेमन्स आर लॉन्ग, 3 आर शॉर्ट, तो अगर वैसा रहेगा तो भी हम मेंशन करेंगे फिर। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए हो गया। ओके, तो अब ये टोपी बना हुआ है पी और ए के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? वही सेम है क्या, मतलब दोनों fused The dependent stamens are fused to the androecium. stamens are fused to the नहीं sorry perianth. हाँ, tepals. हाँ, Stamens are fused to the tepals, तो उसको क्या बोलेंगे? What will be the word you will use?
जैसे पहले कंडीशन, पहले केस में स्टेमन्स वेर फ्यूज्ड टू द पेटल्स, तो वी हैड हाँ। यूज्ड द वर्ड एपीपेटैलस. तो ये एपिटेपैलस. एपीफाइलस. ओके. एपीफाइलस. Okay, good. And G? And G is gynoecium with 3 carpels. Hmm. 3 carpels with सिनोर, क्या वही भूल रही हूँ मैं. सिनमॉर्फस. ना इन्वेंट करने में माहिर है, तुझे नोबेल प्राइज मिलेगा आगे जाके. इट इज सिनकार्पस. कार्पस. ओके. सिनकार्पस. सिनकार्पस याद रह जाएगा, डोंट वरी. तो यू विल से ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस. कार्पस. And gynoecium is superior and Ovary superior. ovary superior. And the hypo flower is hypo नहीं है ना. हाँ hypo what? Hypogynous. गाइनस. लेकिन ये हाइपो नहीं है ना. क्यों नहीं है? फ्लावर्स ज्यादा ऊपर है ना. सारे वर्ल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना. ओके. हाँ. ओके, ओवरी के नीचे से सारे वर्ल्स आ रहे हैं तो इट इज हाइपोगाइनस. ठीक है, गुड. हो जाएगा, बट स्टिल यू आर एबल टू आंसर वेरी वेल. तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, बस वो प्रैक्टिस करते रहना वर्ड्स. ओके, so let's take a look at some important plants of Liliaceae. This is something you know. ये है अपना, हाँ. जैसे कांदा आ गया तो ये कांदा का भाई भी साथ में ही आएगा. एलियम सेपा इज ऑनियन एंड दिस इज एलियम सटाइवम दैट इज गार्लिक. ये अपना गार्लिक. तो नेक्स्ट टाइम जब भी गार्लिक छिलने बैठो तो यू आर गोइंग टू रिवाइज एलियम सटाइवम बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी. तो घर में दाल का तड़का बन रहा है, लहसुन छौंक रहा है, तो यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज, राइट. ये सब पढ़ते पढ़ते देखने कैसे भूख पड़ेगी तुझे. You know this plant? Beautiful flowers. The tulips. Amazing colors, varieties and look very beautiful. उसका नाम ही है ट्यूलिपा. बहुत सारे स्पीशीज है उसके अंदर. Just a minute. पीपीटी बंद हो गया एकदम से. एक मिनट. So the tulips which I was talking about, just a minute, पीपीटी ओपन कर रहा हूँ. They are very beautiful flowers, you know, tulips. बड़े बड़े flowers होते हैं. And दूसरा जो एक कंट्री है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड नेदरलैंड्स. एम्स्टरडैम, नेदरलैंड्स, वहां पर ट्यूलिप्स का बहुत कल्टीवेशन. ओके, एंड इंडिया में सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है दैट इज लोकेटेड ऊटी में है ना. ऊटी में ट्यूलिप्स का नहीं है, कश्मीर में, श्रीनगर में. वेरी बिग गार्डन. ओके, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन ऐसा करके कुछ नाम है, बिग वन. सो व्हेनेवर यू विजिट द गार्डन, वहां पे देखना ट्यूलिप्स इतने अमेजिंग होते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, ना बड़ा बड़ा ट्यूलिप्स होते हैं. दे लुक रियली ब्यूटीफुल. ओके, जस्ट अ सेकंड, वो पीपीटी खुल रहा है. सो ट्यूलिपा आल्सो बिलोंग्स टू लिलिएसी. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन ट्यूलिपा स्पीशीज. बहुत सारे स्पीशीज है उसमें. ओके, and the third one which you had pointed out correctly and identified correctly, that was flame lily. याद है? उसका नाम flame lily करके क्यों रखा है?
क्योंकि फ्लावर का स्ट्रक्चर ही वैसे है, आग जल रहा है। एग्जैक्टली एकदम ऐसे आग जल रहा है जैसा पेटल्स है उसके. नाइस येलोइश टू ऑरेंजिश कलर फ्रॉम द बेस, है ना. तो ऐसा लगेगा जैसे फ्लेम जल रहा है, इसलिए उसका नाम है फ्लेम लिली. तो दैट्स उसका नाम है ग्लोरियोसा सुपरबा. तो हमने 2-3 जगह पे देखा था. एक हमने बस on that hot sunny day we had seen when we were walking through the field, and the other one we had seen at towards लास्ट में Titwala. गए थे towards Titwala. टिटवाला में, वहां पे स्टेशन के हमने उधर ही था। एग्जैक्टली तो वहां हमने देखा था. तो दैट इज ग्लोरियोसा सुपरबा. ठीक है, वो नाम याद रख लें. ओके, मिनट में कुछ पीपीटी अटक गया है. So with that we have come to the end of the 4 families we have studied. First one was Malvaceae, second one was Leguminosae, okay. Third one this one Solanaceae, and the next one we saw was Liliaceae, the last one. Yes. Okay, so ये 4 families अपने हो गए पूरा. And with that we come to the end of morphology of flowering plants, the small lesson that we were doing. अच्छे से याद हो गया पूरा. I have sent you a glossary of important terms from morphology. वो अच्छे से लर्न कर. और भी कुछ स्टडी मटेरियल है that also I will send you. तो ये पूरा लर्न करना है, right? So quickly लास्ट में थोड़ा सा एक रिवीजन क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं. To answer them and we will find out. Just a minute. कैसा लगा ये लेसन? अच्छा था, बहुत सारे टर्म्स थे। बहुत सारे, बट क्वांटिटी वाइज तो पढ़ना ही है ना इस स्टेज में आकर, है ना. हाँ, याद हो जाएगा. ऑब्वियसली सब एक दिन में नहीं होगा, बट यू विल रिमेम्बर. ओके, अभी नॉट ओनली इन दिस, अभी बाकी सारे भी लेसन अगर देखते हैं तो कितने सारे टर्म्स थे. व्हेन यू वर लर्निंग अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें भी तो कम नहीं था, राइट. तो पूरा बायोलॉजी व्हेनेवर यू स्टडी इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स. यू कैन नॉट, तो वो तो लर्न करना ही है, उसका ही मजा है, राइट. And all this you can actually correlate very nicely with your daily life. That's another interesting thing. So ये tulip garden में बता रहा. Okay, and the last one we have seen, that is Gloriosa superba. Beautiful arrangement. Flowers का architecture देखना कैसे बना हुआ है, कि somebody has sit and planned out, design किया है कि क्या हुआ रहेगा नेचर में, कि ऐसा लगने दो कि इसको आग जल रहे जैसा, right. The sole purpose is the same, to attract the insects. इसके एंथर्स देखना कैसे, कहाँ पर लटके, एकदम ऐसे डिस्को फ्लोर की तरह, कि ऊपर आग जल रहा है, नीचे उसका एंथर्स है. ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, राइट. तो फ्लेम लाइक पेटल्स, ये एंडेंजर्ड प्लांट है एक्चुअली. ओके, तो इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. वेरेवर इट इज देयर, वन हैज टू एंश्योर कि इसको प्लक ना करे बिल्कुल. ओके, लेट इट ग्रो, है ना. Okay, so ready for some questions based on the entire lesson. ठीक है, let's see. Your memory is good, ultimately you are able to answer. ठीक है, words इधर उधर हो जाता है, that is understood, but still you remember quite a lot. That's appreciable. Ready? First question. Question read कर answer दो. Nodes and internodes are characteristically found in root. Nodes and internodes. Oh no, stem. Nodes and internodes सिर्फ stem पे हाँ, मिलेगा, root पे नहीं मिलेगा. Okay, yes. रूट में नोड्यूल्स है। Nodules होते हैं, वो अलग है, and not in all the roots. Legumes में होते हैं उसमें. हाँ, Correct. ये बता. napiform type of roots are found in Dacus carota। No. नहीं, एक मिनट। उसका नापी ना प्रोनाउंसिएशन बीट रूट होगा. में रहता है, बीट रूट में। करेक्ट करेक्ट. बीट रूट का क्या है, बीटा है। यस, ओके, हाँ, बीटा वल्गारिस। बेटा वल्गारिस. हाँ, ओके, बीटरूट, गुड, वेरी नाइस. नेक्स्ट.
In a pitcher plant, the tip of the dash is modified to form the pitcher for trapping insects. Okay. Pitcher plant में Leaf modifications we had seen. leaves modified Correct. कहते हैं ना? लीफ का हाँ। टिप जो होता है वो एक्सटेंड होके हाँ। पिक्चर बनता है उसमें. करेक्ट, गुड. हाँ. ये बता. If petals in a flowers are fused, it फ्लावर is नहीं called रे, फ्लावर. flower. याद है रूपा को Flower. बोलता था. हाँ. Flower are fused, it is called gamopetals. करेक्ट, क्या बात है. ये बता. The pea plant belongs to the family Leguminosae. वेरी गुड. The odd one out among the given is style. करेक्ट. व्हाई? Anther filament साथ साथ रहते हैं. साथ साथ है ये क्या? डोंट गेट इमोशनल अबाउट इट. Anthers and filament belong to Androecium. Style belongs to. हाँ. रीजन बराबर बोलते हैं, साथ में रहते हैं क्या? ओके, ये बता. Rhizome is a root modification. हाँ, Rhizome है ना? राइजोम. हाँ, नाम में राइजो है बट इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन. Stem. यस. Okay. ठीक है. राइजोम, जिंजर, टर्मरिक याद है. हाँ. नेक्स्ट. Dash is a indefinite type of inflorescence. Racemose. करेक्ट, वेरी गुड. ये बता. Dash bears compound. बियर्स नहीं रे, बेयर्स. Bears. Bear Bears is something compound. else. हाँ. Bears compound leaves. हाँ, वो लास्ट वाला. पकड़ मत मारना बोल. As a dirchita indica. आजादी रखता इंडिका. Indica. हाँ, ये आजादी किसका नेम है, किसका नाम है ये? वही क्या था? नीम ट्री. मुझे नहीं याद. Okay, नीम. नीम. ओके, यस. ये बता. If a flower show radial फ्लावर symmetry. नहीं. Flower. Flower show radial symmetry. It is said to be actinomorphic. करेक्ट. Reticulate रेटिक्यूलेट. reticulate type of venation is not observed in Hazimes. बिकॉज वो मोनोकॉट है. Monocot. नेक्स्ट. The mesocarp is fleshy and edible in Focus Nucifera. नो नो. Mesocarp. Mesocarp. It's a part of the fruit wall. Fruit wall. याद है? पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. हाँ, तो मैंजीफेरा इट इज इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो मीजोकार्प है. कोकोस न्यूसीफेरा में जो मलाई वगैरह आता है वो एंडोस्पर्म है. ओके. हाँ. उसमें कवरिंग तो नहीं खाते ना हम लोग. हाँ. ओके, यस. हाँ. In Papillo. पैपिलियोनेसी. नासिया नहीं रे, यहाँ पे नाश मत. in Papillonaceae. हाँ. हाँ. The petals show type of estivation. हाँ, बोला ना. Velvet. नया ना ना अभी बताया था मैंने. पैपिलियोनेसी का यूनिक टाइप है. हाँ, वो नहीं होगी. हाँ, तो vexillary. यस, वी याद रहा बस. नेक्स्ट. If the shape of a leaf is spherical, it is said to be
पूरा गोल लीफ अगर होगा no, orbicular. it is orbicular, correct. Dash is an example of false fruit, also called pseudocarp. Pear. Correct. Trimerous symmetry is observed in members of family. Liliaceae. Correct. Because that's a monocot. Very good. Potato and tomato belong to the family Solanaceae. Solanaceae. नासी Naceae. मतलब ऐसा एकदम नाशनी sound कर Naceae. The part of a seed which is also called seed leaf is the endosperm. seed leaf. Endosperm is the nutritive tissue provided by the mother plant. Seed leaf जो embryo को cover करता है, leaf like structure. Cotyledon. Cotyledon. Cotyledon नहीं, cotyledon. Lidon. Okay. Androecium is made up of stamen. Correct. Easy था ना? If in the androecium of a flower the filaments are fused and anthers are free, the condition is called Adelphi. It is Adelphi. Adelphi. Correct. And last one. Dash is the stalk of a leaf. Pedicel. Stalk of a leaf. लीफ के स्टॉक को बोलते हैं Petiole. पेटियोल. पेडिसल फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं. एंड पेडंकल वो ब्रांच जिस पे फ्लावर्स आते हैं, branch of the inflorescence. Okay, so with that we come to the end of this small lesson from 11th standard, that is morphology of flowering plants, right? So now you have enormous number of things to study, prepare, learn, examples अच्छे से याद करो. But समझा अच्छे से सब? हाँ. ठीक है? Yes, it was interesting, right? Yes, good.